Assalamu alaikum, namaste dear students. Today we are going to start first year biology, chapter number 1, biology and its major fields. Dear students, most of the students who have been recently promoted from matric class into first year requested me to start biology from the beginning. क्योंकि कोविड-19 के पेंडेमिक में जैसा कि आप जानते हो कि एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया, तो मैंने पहले ही 5-6 चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं इस चैनल पे, लेकिन वो लास्ट के चैप्टर्स हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अभी ये इस चैनल को ज्वाइन किया है तो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी कि सर आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करो। तो मैं अपने न्यू स्टूडेंट्स, इससे जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली उनको भी फ़ायदा होगा, लेकिन जिन्होंने अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है और वो प्रमोट हुए हैं तो ये स्पेशली उनके लिए मैं ये चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, बायोलॉजी एंड इट्स मेजर फील्ड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वर्ड बायोलॉजी को। द वर्ड बायोलॉजी comes from 2 Greek words. The term biology comes from 2 Greek words, bios meaning life and logos meaning study. So what is definition of biology? Biology is the natural science that studies life and living organisms. Dear students, as you know, the biology is devoted to study of life, means living organisms, and it is branch of natural science. तो सबसे पहले आप क्वेश्चन करोगे what is natural science? Natural science is the study of natural world. It can be divided into 2 main branches. Dear students, natural science natural world की स्टडी को कहते हैं और इसको मज़ीद 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, एक लाइफ साइंस और दूसरा फिजिकल साइंस। लाइफ साइंस में हम बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो फिजिकल साइंस है इट डील्स अबाउट द नॉन लिविंग मैटर। तो सबसे पहले आप नेचुरल साइंस को डिवाइड करोगे 2 ब्रांचेस में। नेचुरल साइंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, लाइफ साइंस and physical science. Life science deals about the living organisms and physical science deals about the non-living matter, non-living things. Life science is alternatively known as biology. आप इसको biology भी कह सकते हो. And dear student, physical science. Physical science is further subdivided into branches: physics, chemistry, astronomy and geography. What is physics? Physics is the study of matter and its motion in the space. What is chemistry? Chemistry is the study of matter, various forms of the matter and the changes which takes place in the matter. What is astronomy? Astronomy is the study of sun, moon, stars and planets in the space. And what is geography? It is the study of the physical properties of the surface of earth and distribution of human societies on earth. तो dear students, ये जो life science है, natural science का branch, life science deals with the living organisms, और ये जो physical science है, physical science deals with the non-living objects in surrounding. उसके बाद हम आते हैं life की definition की तरफ. Biology is the science of life, but what is the definition of life? Dear students, there is no clear cut definition of the life. Life का कोई clear cut definition तो नहीं है, मगर जैसा कि हम कहते हैं कि living organisms में life पाई जाती है, तो हम life को define करेंगे life की properties से, life की properties से. There is no clear cut definition of life. But what is organism in biology? In biology, an organism is any individual that has properties of life. तो ऑर्गेनिज्म एक ऐसे इंडिविजुअल को कहते हैं जिसमें लाइफ की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं. All living organisms share several key characteristics. When viewed together, these characteristics serve to define life. जिससे हम लाइफ को डिफाइन करते हैं. So this is simple definition of life. Therefore, the life is a characteristics shared by all living organisms. Organisms share common characteristics that taken together to define life. Life is defined by properties of life. तो dear students, अब हम लाइफ की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे.
जैसा कि आप सब जानते हो कि लाइफ का बेसिक यूनिट सेल है, ठीक। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अगर एक सेल का बना हुआ होगा ऑर्गेनिज्म तो हम कहेंगे यूनिसेल्यूलर, अगर उसमें मैनी सेल्स पाए जाएंगे तो हम कहेंगे मल्टी सेल्यूलर। So an individual living creature is called an organism, may be unicellular made up of one cell जैसे amoeba, जैसे paramecium, जैसे euglena, और multicellular made up of many cells, human beings, frogs, cockroaches, plants, so on। ठीक है, तो यूनिसेल्यूलर में भी लाइफ की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और मल्टीसेल्यूलर में भी लाइफ की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम लाइफ की प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। फर्स्ट, रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑल ऑफ अ सडन किसी फ्लैम को टच करें, कैंडल का जो फ्लैम होता है, ऑल ऑफ अ सडन हमारा ख्याल भी ना हो, उसको हम टच करेंगे तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। वी इमीडिएटली विथड्रॉ आवर हैंड फ्रॉम दैट फ्लेम ऑफ कैंडल। या कोई तेज़ लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो वो इमीडिएटली क्लोज अवर आइज। तो ये हम अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। इसको कहते हैं इरिटेबिलिटी। इसको आल्सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो लाइफ की पहली प्रॉपर्टी है रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो इरिटेबिलिटी, मीनिंग दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई और चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, पीपल पुल देयर हैंड अवे फास्ट फ्रॉम अ कैंडल फ्लेम। यहाँ पे आप एक एनिमेशन देख रहे हो। अगर किसी भी पर्सन का ऑल ऑफ अ सडन व्हेन अ हैंड टचेस अ candle flame, we immediately withdraw our hand from that hot object. So this is our response. Some plants are sensitive to insect touch. जैसे ही वो insectivorous plant होते हैं, जैसे insect उनको टच करता है तो वो respond करते हैं, अपने leaves close कर देते हैं उस insects को capture करने के लिए. So this is another example of sensitivity. Irritability. Insectivorous plants rapidly close their leaves in response to contact of an insect. So this is the first property of life, respond to environment, known as irritability, also known as sensitivity. उसके बाद growth. आप इस पिक्चर को देखें. This is the picture showing seed germination. एक सीड जर्मिनेट हो रहा है और उससे एक स्मॉल प्लांट बाहर आ रहा है. आप देखें उसकी जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो रही है और उसका जो वेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है. फ्रॉम दिस पिक्चर व्हाट यू कैन से अबाउट द ग्रोथ. तो देखें जैसे ही ये प्लांट बाहर आएगा सीड से, अपने फोटोसिंथेटिक लीव्स बनाएगा, फर्स्ट फोलिएज लीव्स. तो इसका जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. इसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे. जब जब न्यूट्रिएंट्स इसके सेल्स में ऐड होंगे तो ये ग्रोथ करेगा. सो ग्रोथ to aid materials to increase size and weight of the cells or body. उसके बाद reproduction एक और लाइफ की प्रॉपर्टी. organisms make more organisms themselves. organisms अपने जैसे organisms पैदा करते हैं. इसको कहते हैं reproduction. Look at this diagram, binary fission in amoeba. आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है जिसमें एक एमीबा डिवाइड होकर दो डॉटर एमीबा बना रहा है. इसको कहते हैं बाइनरी फिशन इन एमीबा, व्हेन अ पेरेंट एमीबा डिवाइड टू फॉर्म डॉटर एमीबी. तो ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं. इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन. द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन and sexual reproduction. What do you mean by asexual reproduction? Involving a single parent. ऐसा reproduction जिसमें सिर्फ एक parent हो. This is the diagram of asexual reproduction. Here you see there is only one parent amoeba. Then what do you mean by sexual reproduction? Requiring two parents, जैसे human beings, जैसे birds, जैसे reptiles और बहुत सारे दूसरे organisms sexual reproduction करते हैं. उसके बाद respiration. रिस्पिरेशन. डियर स्टूडेंट्स, आप एक एनिमेशन देखो. ये ह्यूमन लंग्स में पहले एयर इन हो रहा है फिर एयर आउट हो रहा है. इसको कहते हैं रेस्पिरेशन. अच्छा, एक मैं बात क्लियर कर दूं. रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल. यहाँ पे ये जो आप एनिमेशन देख रहे हो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द फॉर्मल टर्म फॉर गैसियस एक्सचेंज. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें,
External respiration refers to the process of respiration, also called breathing, where gases are exchanged between the lungs and external environment. Intake of air is called inspiration and get rid of air is called expiration. दोनों को मिलाकर हम कहते हैं respiration. अब आप इस पिक्चर को देखें एमीबा, तो ये भी respiration करेगा, एक सेल है, मगर ये रेस्पिरेशन करेगा अपने सरफेस मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. Here you see oxygen in inspiration. In amoeba, external respiration refers to gaseous exchange that occurs across the respiratory membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑक्सीजन अंदर आया, इंस्पिरेशन, और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, CO2 आउट, एक्सपिरेशन. इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इज नोन एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. और जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है वो अंदर टिश्यू लेवल पे होता है. एक और प्रॉपर्टी एक्सक्रीशन. व्हाट इज एक्सक्रीशन? To remove harmful byproducts of cellular reaction from the cells or from the body is called excretion. अब देखें, आपको एक फिश का डायग्राम नज़र आ रहा है, दूसरा एलिफेंट का और तीसरा बर्ड का. ये सारे एनिमल्स और हम ह्यूमन बींग्स भी और दूसरे एनिमल्स भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं. अब हमारी बॉडी में और इन एनिमल्स की बॉडी में प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड. अगर प्रोटीन्स ब्रेक डाउन में आएंगे तो वो ब्रेक होंगे अमाइनो एसिड्स में. अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. अगर न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए को ब्रेक किया जाएगा तो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन. तो देखें, अमाइनो एसिड अगर फर्दर ब्रेक होंगे तो उनमें भी अमाइनो ग्रुप NH2 पाया जाता है. नाइट्रोजीनियस बेसेस में को भी अगर हम फर्दर ब्रेक कर दें तो उसमें अमाइनो ग्रुप पाया जाता है, जो कि एक नाइट्रोजीनियस ग्रुप है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है. फिर क्या होता है कि बॉडी सेल्स के अंदर इस अमाइनो ग्रुप को दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन कर दिया जाता है, और या उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या उसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. सो एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक अमोनिया, लाइक यूरिया एंड लाइक यूरिक एसिड इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. देखें, अगर ये एक एक्वेटिक फिश है, ये अपनी बॉडी से अपने यूरिन के थ्रू अमोनिया का ज़्यादा अमाउंट एक्सक्रीट कर रही है, तो याद रखिएगा एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म. अगर एलिफेंट की बॉडी से उसके यूरिन में यूरिया रिलीज हो रहा है मेजर अमाउंट में, तो इसको क्या कहते हैं? यूरियोटेलिज्म. एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म. एंड डियर स्टूडेंट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स excrete a nitrogenous base known as uric acid. Excretion of uric acid is called uricotelism. एक और लाइफ की प्रॉपर्टी मेटाबॉलिज्म. Metabolism is defined as sum of all chemical reactions in the body. Group of these reactions are in two types. Dear students, हमारी बॉडी के सेल्स में और दूसरे एनिमल्स, प्लांट्स की बॉडी के सेल्स में बहुत सारे रिएक्शंस एट अ टाइम होते हैं. उनमें या तो नए सब्सटेंस बनते हैं या जो सब्सटेंस बन चुके होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं. एक को कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं, और दूसरा होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें सब्सटेंस को ब्रेक कर दिया जाता है. तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला करके कहते हैं मेटाबॉलिज्म. सो दीज रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, एनाबॉलिक रिएक्शंस and catabolic reactions. It is constructive process and it is destructive process. Anabolic reactions use chemical energy to synthesize products. ये chemical energy को use करते हुए new substances synthesize करते हैं. And what do you mean by catabolic reactions? Breakdown of substances to generate chemical energy. देखें, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज नीड से ज़्यादा हो जाता है, when the glucose is more than the need, it is converted into glycogen. तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स को कंबाइन करके एक पॉलीमर ग्लाइकोजन बनाया गया. इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है. और यहाँ पे देखें, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है? ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज और इसमें एनर्जी रिलीज होती है. तो देखिए, एनाबॉलिक रिएक्शन एनर्जी को कंज्यूम करते हैं और कैटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज करते हैं. इसमें न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर हो जाती है, और इसमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, उनसे एनर्जी रिलीज कर दी जाती है. अगर डियर स्टूडेंट्स ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस. सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस.
अगर ग्लाइकोजेंस को वापस ब्रेक कर दिया जाता है ग्लूकोज में, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले बायोलॉजी का डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने नेचुरल साइंस के 2 ब्रांचेस पढ़े, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस। बायोलॉजी हम लाइफ साइंस में पढ़ाते हैं, जिसको बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं। उसके बाद हमने लाइफ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। जो सबसे पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा टॉपिक है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? आप किस तरह डिफाइन करोगे? Biological classification is the process by which scientists arrange living organisms into groups called taxa in accordance with the observed similarities. तो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में अरेंज किया जाता है। उसको सिंगुलर में कहते हैं टैक्सॉन और प्लूरल में कहते हैं टैक्सा। तो आप दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट इज किंगडम इन बायोलॉजी? तो किंगडम को भी डिफाइन करते हैं। इन बायोलॉजी किंगडम इज अ टैक्सोनॉमिक रैंक, टैक्सोनॉमिक ग्रुप दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड फाइला। फाइला को कंबाइन करके किंगडम बनाया जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, फाइला को बॉटनी में डिवीजन्स कहते हैं। Who proposed 5 kingdom classification? Robert Whittaker proposed 5 kingdom classification in the year 1969. So Robert Whittaker was born in the year 1920 and passed away in the year 1980, and he proposed 5 kingdom classification. So the 5 kingdom classification, ये कुछ कैरेक्टर्स पे बेस है। The classification was based upon certain characters like mode of nutrition, के organisms autotrophs होते हैं या heterotrophs होते हैं, उस बुनियाद पे सेल स्ट्रक्चर, सेल टाइप यानी वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है, एटसेट्रा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस करता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर हम कंपैरिजन करें 5 किंगडम्स की, तो कौन से 5 किंगडम्स हम पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में? मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। तो जैसा कि क्लासिफिकेशन बेस्ड है सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे, तो अब हम उसी कैरेक्टर्स के बुनियाद पे इन किंगडम्स को डिफाइन करेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे गोल्जी बॉडीज, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे न्यूक्लियस। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें, सो इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स आर एब्सेंट, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, जैसा कि बैक्टीरिया, जैसा कि साइनोबैक्टीरिया। ये किंगडम मोनेरा के यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इनको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है क्योंकि इनमें इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील एब्सेंट होते हैं। बाकी चारों में प्रेजेंट होते हैं, इनको कहते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्टा प्रेजेंट। Eukaryotic cell is that cell whose nucleus is bounded by well-defined nuclear membrane, और उसमें membrane bounded organelle cells में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एटसेट्रा। तो ये यूकैरियोट्स में आते हैं। अगर हम फंजाई की बात करें तो इनमें भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लेंटी की, तो उनमें भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं, प्रेजेंट यूकैरियोट्स। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इनमें भी, इनके सेल्स में भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स। अब हम आते हैं दूसरे कैरेक्टर सेल वॉल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ मोनेरा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, सेल वॉल इज ऑलवेज प्रेजेंट और इनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन, शुगर्स और अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ मेंबर्स में होता है, कुछ में नहीं होता, प्रेजेंट और एब्सेंट। अगर हम इसमें अल्जी की बात करें, अल्वा की बात करें, तो उसमें अल्जी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और उसमें मेजर कंपोनेंट सेल्यूलोज और पैक्टिन होते हैं। मगर जैसा कि एमीबा में, पैरामीशियम में, प्लाज्मोडियम में, ये ऐसी प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, सेल वॉल नहीं होता। अगर हम फंजाई की बात करें तो होता है, सेल वॉल इज ऑलवेज प्रेजेंट एंड इट्स चीफ कंपोनेंट इज काइटिन, हार्ड पॉलीसेकेराइड। प्लांट के सेल्स में भी होता है, हुज चीफ कंपोनेंट इज सेल्यूलोज, मगर एनिमल सेल्स में नहीं होता, सेल वॉल इज एब्सेंट। तीसरा कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर हैं या मल्टी सेल्युलर। सो इन केस ऑफ मोनेरा ऑल द मेंबर्स आर यूनिसेल्युलर, आर्चीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ऑल आर यूनिसेल्युलर। प्रोटिस्टा इज कलेक्शन ऑफ बोथ। अगर हम एमीबा की बात करें यूनिसेल्युलर, पैरामीशियम की बात करें
यूनिसेल्यूलर, यूग्लिना की बात करें यूनिसेल्यूलर, प्लाज्मोडियम की बात करें यूनिसेल्यूलर, मगर इसमें कुछ अल्जी के एग्जांपल्स रखे हुए हैं जैसे कि अल्वा लैक्टूसा मल्टीसेल्यूलर। फंजाई मल्टीसेल्यूलर विथ एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, मशरूम्स वगैरह तो मल्टीसेल्यूलर होते हैं, मगर यीस्ट एक ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेल्यूलर है। प्लांट्स आर ऑलवेज मल्टीसेल्यूलर, एनिमल्स आर ऑलवेज मल्टीसेल्यूलर। इस पूरे स्लाइड को फोकस कीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट्स लेते हैं, उसको पूरे को आप फोकस करें। अब हम आते हैं दो मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स पे। मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि इसमें ऑटोट्रॉफ्स पाए जाते हैं या हेटेरोट्रॉफ्स। देखें इट इज़ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो किंगडम मोनेरा में जो साइनोबैक्टीरिया जिनका ओल्ड नेम ब्लू ग्रीन एल्जी था वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो कुछ फोटोसिंथेटिक और कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोटिस्टा, अगेन मिक्सचर ऑफ बोथ ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। अगर हम ऑटोट्रॉफ्स की बात करें तो वो अल्जी, इसमें यूकैरियोटिक अल्जी ऑटोट्रॉफ्स हैं, एमीबा, पैरामीशियम एंड सो ऑन, दे आर हेटेरोट्रॉफिक। फंजाई आर ऑलवेज हेटेरोट्रॉफ्स, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स, ये फूड को लिक्विड फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं, इनको ऑस्मोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। प्लांट्स मोस्टली ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं विथ फ्यू एक्सेप्शन जो कि पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं। एनिमल्स दे आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ, ये सॉलिड फूड को इंजेस्ट करते हैं। सबसे लास्ट में हम एग्जांपल्स देंगे। रिप्रेजेंटिंग ग्रुप्स, व्हाट आर द रिप्रेजेंटिंग ग्रुप्स ऑफ मोनेरा? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। व्हाट आर द रिप्रेजेंटिंग ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्टा? प्रोटोजोआ, अल्जी, स्लाइम मोल्ड्स। व्हाट आर द रिप्रेजेंटिंग ग्रुप्स ऑफ फंजाई? मशरूम्स, यीस्ट एटसेट्रा। प्लांटी, मॉसेस, फॉर्न्स, सीड प्लांट्स। एनिमल्स, हाइड्रा, अर्थवर्म, मेन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज पहला लेक्चर था जिसमें हमने लाइफ को डिफ़ाइन किया, लाइफ की प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया, और उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइफ के बाद सबसे लास्ट में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट, गुड लक।